So Yes, the sir. subject that I'll be teaching in this semester will be MEP. So अभी तक कौन कौन से subject का आपको overview हो चुका है? Which are the subject that you have gone through or lecture has been taken? Internet programming, data Okay, management, okay, and one more was the elective subject. okay, the elective one. Okay, so three subject you have gone through. So this will be the fourth subject, which is MEP. इसके अलावा बच गया आपका CNS मेरे ख्याल से. CNS ही Yes. बच गया, सिर्फ एक ही बचा. Okay, fine. So we'll start with the See. subject. So currently we have 49 students. So we are still waiting for 10 odd students. So they will join. We'll start with the subject. Okay. So हम सबसे पहले start करते हैं with the syllabus. So I'll just start with the presentation. So are you able to view my screen? Is it visible? Is it Yes. visible? Fine. Fine. Okay. So we'll start with the syllabus. So the syllabus is again it is an extension of COA. थोड़ा बहुत extension है, थोड़ा बहुत मतलब almost वहाँ जहाँ पे वो खत्म होता है उसके अगले ही से ये start होता है. So in the previous subject in COA we have covered with a special processor called as, what was the processor that we have covered in that subject? कौन सा प्रोसेसर पढ़ा था 8086. हमने? 8086. 8080 and that was called as microprocessor or microcontroller. Microprocessor. 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 So we have covered a microprocessor. We have covered some computer organization and architecture part कि वो microprocessor में actually working कैसे होता है, उसका mathematical कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर पाइपलाइनिंग कैसे होता है. सो अगर आपको ये वाला जो सब्जेक्ट पढ़ना है विच इज MEP, ये तभी समझ में आएगा कि जब उसका एक फाउंडेशन थोड़ा बेहतर आपको उस सब्जेक्ट का अगर समझ में आया होगा, तभी ये सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा. अगर अचानक से अगर आपने लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ पढ़ा नहीं और एग्जाम ये सोच के आए कि एग्जाम नहीं था तो इसने वो COA छोड़ दिया, एकदम दिमाग से एकदम निकाल दिया, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होगी. एंड आई विल टेल यू द रिजल्ट ऑफ दिस. आई हैव टेकन दिस subject previously. उससे पहले ये सब्जेक्ट के अंदर the average KT was like 20 people used to fail in this subject. Okay, so it is one of the most difficult subject in order to clear it. As from the third year perspective, from the fifth semester perspective, this subject in CNS has a very bad record. Previously, only one student have failed when I have taken this subject. So I assume, because for them I have taken a COA completely. So I assume कि आपको भी थोड़ा बहुत COA समझ में आया होगा. But problem ये था कि लॉकडाउन होने की वजह से पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया. हम कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत रिवाइंड जाने की, थोड़ा बहुत 8086 में वापस जाने की, और इस सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे क्लियर करने के लिए. ओके, आप सबको आवाज बराबर आ रही है? Yes, Okay, Yes, yes, so sir. sir. please give a little bit feed in between. Okay, so I'll be able to understand कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक बात बराबर पहुँच रही है. Okay, so either say yes, no, बीच में कुछ तो बोलते रहो. And please do not put anything into this chat, क्योंकि मैं जब स्क्रीन खोल लेता हूँ तो वो मुझे चैट वाला पार्ट नहीं दिख पाता है. Okay, so do not put that chat वाला part. Okay. I'll just check whether I've started the recording. Okay, yeah, I've started the recording part. Okay, and also while I'm recording, so please do not use some other words and all, because I've seen the CGBR ka lecture. Okay, so in between, some of the students have started discussing their internal matters, their funny parts. So it was quite funny, but yeah, it went to all the faculties. So every faculty has got the access to these content. So they will be listening to whatever you're saying. So please speak properly, make a proper decorum, and we'll start with the syllabus orientation of this subject. Okay. So the subject is titled as microcontroller and embedded programming. Okay. So इससे पहले जो पढ़ा था that was microprocessor. यहाँ पे थोड़ा उसका एक अलग version है which is called as a microcontroller. Microcontroller क्या होता है, microprocessor अलग क्या होता है? Microprocessor जो है वो multiple task कर सकता है. Okay, एक साथ 10-15 कोई भी काम उसको बोलो. अगर आप जैसे आपके पीसी में अगर आप इस वक्त लाइव स्ट्रीम देख भी रहे होगे या सुन भी रहे होगे, और साथ में साइमल्टेनियसली हो सकता है कुछ लोग पबजी भी खेल रहे होगे. ओके, या साथ में हो सकता है कोई इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो एडिट कर रहा होगा. So basically, you are performing multiple tasks which is supported with the help of a microprocessor. But in the case of microcontroller, it is not at all possible because it is only designed to work for only a specific task. एक खास मकसद के लिए अगर आपको कोई काम करवाना है, that can be done with the help of microcontroller. So is the difference clear to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So microcontroller
के बारे में पढ़ेंगे। देन देयर इज अ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग एसोसिएटेड विद इट, मतलब बेसिकली उस माइक्रो कंट्रोलर को अगर हमें एम्बेडेड सिस्टम में डालना है तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। अगर वो एम्बेडेड सिस्टम में डालना होगा तो उस एम्बेडेड सिस्टम का जो टास्क करना होगा वो टास्क कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। सो इसके अंदर प्रोग्रामिंग का पार्ट ज्यादा होगा। सो सीओए के अंदर प्रोग्रामिंग वाज लाइक, अगर मैं उसको एक स्केल के उस पे नापूंगा तो सीओए में अगर आपने प्रोग्रामिंग 2 लेवल पे अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे उसका लेवल 10 हो जाएगा। एंड आई कैन गारंटी इन पेपर कम से कम 20 to 30 मार्क्स आपका प्रोग्राम में आएगा। ओके, और अगर आपने प्रोग्राम को स्किप किया तो आपको पास होने के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई प्रोग्रामिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस। ओके, जो ज्यादा केटी जो लगती है उसका मकसद उसके पीछे जो वजह है वो है प्रोग्रामिंग आप छोड़ देते हो अक्सर। ओके, so please while learning this subject do not try to skip the programming part. Okay, at least जो हमने लास्ट टाइम एक टेम्पलेट बना लिया था कि ये टेम्पलेट कुछ नहीं आया तो ये टेम्पलेट लिख देंगे, उतना भी कर दिया तो भी वेल एंड गुड हो जाएगा, एटलीस्ट पास हो सकते हो सब्जेक्ट के लिए। ओके, लेकिन हाँ स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है इस सब्जेक्ट में। जो टॉप क्रीमी टीयर वाले स्टूडेंट होंगे कुछ लोग वो 65-70 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। बट हाँ अगर पास होना है तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, उस पर फोकस करना है, प्रोग्रामिंग पे थोड़ा फोकस करना है और फिर इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है तो अच्छा होगा आपके लिए। Okay, so this subject has 4 theories. 4 theories that we are talking about is in a week there will be 4 lectures. Okay, oral and practical जो है that is altogether a different ball game. So अगर आपको याद होगा there is a practical called as IoT lab. That IoT lab will be taken by Anita ma'am. Okay, so there are some relevancy into it, but वो अलग ही है. That is a different lab altogether. Okay, there is a little bit. We can say only 10 to 20% are related to this particular subject is related to that lab, but बाकी 80% वो पूरा एकदम नया चीज है। Okay, so we'll go to the theory part. So theory will be taken by me, practical will be taken by Anita ma'am. So practical she will be explaining. There will be a mini project associated with IoT lab. वो mini project कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या क्या component लेना है, वो सब अनीता मैम बताएंगे। So my load is to give a justification to this 100 marks जो कि आपके थियरी में आएगा। So माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट यानी जो 20 मार्क है आपका, वो आता है 2 टेस्ट की वजह से। So एक पहला टर्म टेस्ट होगा जो 20 मार्क का होगा, फिर दूसरा टर्म टेस्ट होगा जो 20 मार्क का होगा। इन दोनों के टर्म टेस्ट का जो एवरेज होगा उससे आपका 20 मार्क कैलकुलेट होगा। ओके, ये 20 मार्क आपके थियरी में जुड़ जाएगा और बचा हुआ 80 जो मार्क्स होगा दैट वुड कम फ्रॉम अ एंड सेमेस्टर एग्जाम। जो आपके 3 घंटे का पेपर होगा, उस 3 घंटे के पेपर में जो भी आप उस वक्त सॉल्व करोगे वो जज करके 80 मार्क्स में से जो आपका मार्क्स होगा that would be added with the 20 marks that has came out of the internal assessment marks, and finally आपको जो मार्क्स मिलेगा that would be out of 100. Is it clear? Is it clear? Is it Yes, clear? sir. Yeah. Okay. Yes, Fine. sir. Okay. So that is the main breakup of the marks. So assessment 20 मार्क, 80 मार्क थियरी का पेपर एंड टोटल थियरी का मार्क्स would be 100. 50 मार्क आपका जो है प्रैक्टिकल में, उसमें ब्रेकडाउन बता देता हूं मैं। 50 में से 25 मार्क जो है दैट इज फॉर योर प्रोजेक्ट दैट यू विल बी बिल्डिंग ऑन, एंड 25 मार्क्स विल बी योर oral and practical. Okay, so oral and practical तो नहीं होगा but oral exam होगा which will be based on the project that you have built, and this subject can also be asked into the oral as well. Okay, so that is how the subject is made up of 150 marks. We'll go to the actual course, actual syllabus of it. So सबसे पहले कोई भी subject अगर आप start करते हो तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है which is module 0 is always start with a special title called as prerequisite. प्रीरिक्विजिट का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उस सब्जेक्ट उससे रिलेटेड या कोई और दूसरे सब्जेक्ट को जानना क्या जरूरी है, या एक ये डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो यस, इट रिक्वायर प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्रीवियस सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे रिवीजन दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ओके, यहाँ पे रिवीजन दिया गया हाई लेवल मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो हमने 8086 में सीखा था। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंस के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा बहुत ये हम 1-2 लेक्चर में या
अगले लेक्चर में जो कि कल होगा उस टाइम पे थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट को डिस्कस करेंगे। तो प्री रिक्विजिट में माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग क्या है, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, ये सब प्री रिक्विजिट में जाएगा। और उसके बाद जब प्री रिक्विजिट हो जाएगा देन यू आर नाउ फिट इनफ टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। सो द पहला जो मॉड्यूल होगा आपके सब्जेक्ट का इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम। बाय द वे, आर यू गाइस मेकिंग अ नोटबुक और आर यू गाइस नोटिंग इट डाउन? क्या कर रहे हो आप? ये सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो? We are noting. You guys are noting it down, right? सब नोट कर रहे हैं कि कुछ कुछ ही लोग कर रहे हैं, या बाकी लोग डिपेंड है कि बाद में वीडियो देख लेंगे? वीडियो तो मिल जाएगा आपको, बट आई कैन गारंटी दैट कि अगर आप नोट करोगे तो वो आपको याद रहेगा, वो मिस आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना नोट के, बिना लेटे हुए अगर अपने तकिए पे आराम करके वीडियो देख रहे हो तो उससे आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, सो यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स जो आपको, जिससे आपको ऑनलाइन का कुछ तो फायदा हो। आई नो कि ये सिचुएशन पे ज्यादा मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी लेक्चर हो रहा है तो प्लीज साथ में एक बुक लेके बैठो, साथ में एक पेन वेन कुछ लेके बैठो, कुछ मार्क करते रहो। मैं ये स्लाइड, मैं ये पीडीएफ और साथ में जो वीडियो होगा ये शेयर कर दूंगा, लेकिन वो बाद में अगर आप देखने जाओगे तो बाद की चीज बाद में रह जाएगी। सो बेटर ये है कि आप साथ में कुछ नोटबुक वोटबुक लेके बैठो। पॉइंट बता रहा हूँ कि किस पे फोकस करना है, किस पे सवाल आ सकते हैं, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स को आ सकता है, वो चीज थोड़ा नोट डाउन करते चलो साथ में, तो बेटर होगा। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम पहला मॉड्यूल। हमेशा पहला मॉड्यूल पहले क्वेश्चन के अंदर गारंटीड 2 क्वेश्चन आते हैं कंपलसरी में से, तो 10 मार्क का ये मॉड्यूल होगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और इसको खत्म करने के लिए 1 घंटा भी काफी है, 2 घंटा भी काफी है, उससे ज्यादा नहीं लेगा इसे। 2 घंटे से ज्यादा ये मॉड्यूल नहीं लगेगा खत्म करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ, सो आप साथ में देखते चले आना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम कोई ऐसा कोई बड़ा सिस्टम नहीं होता है, एक खास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक ही टास्क करे, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिक्स करके हम सिस्टम को बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल योर वॉशिंग मशीन व्हिच डज अ स्पेसिफिक टास्क, जो कपड़ा धोता है। उसके अलावा वो खाना नहीं बना सकता, खाना बनाने के लिए देयर इज अ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन सिर्फ खाना बना सकता, वो कपड़ा नहीं धो सकता या फ्रीज नहीं कर सकता। फ्रीज करने के लिए देयर इज अनदर इक्विपमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ फ्रिज। ओके, सो फ्रिज में आप फ्रीज ही कर सकते हो कोई भी आपके फूड प्रोडक्ट्स को। उसके अलावा आप कोई और टास्क नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आजकल मॉडर्न फ्रिज आ चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने स्क्रीन डाल दिया, आप उसके अंदर मोबाइल सिस्टम भी पूरा उन्होंने डाल दिया है। तो अभी आजकल तो उन्होंने मल्टीपल चीजों को, गैजेट को एक साथ डालना चालू कर दिया है। लेकिन हाँ, जब हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक ही टास्क करके दे आपको। ओके, सो वो एम्बेडेड सिस्टम का कुछ आर्किटेक्चर होगा जो हमें पढ़ना होगा। ओके, सो इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपका इसके ऊपर वो है व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स आर्किटेक्चर या एक्सप्लेन इट्स आर्किटेक्चर। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट और ज्यादातर इस मॉड्यूल से अगर कोई सवाल बनता है तो ये सवाल बनता है। उसके बाद एप्लीकेशन एरिया आ जाता है कि एम्बेडेड सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो ये हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर कैटेगरीज आ जाती है एम्बेडेड सिस्टम की। तो ये थोड़े बहुत जैसे कि सोफिस्टिकेटेड एक कैटेगरी है एम्बेडेड सिस्टम की, कुछ स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता है, फिर मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। थियरी है, 2 लाइन का थियरी है जो बताने से आपको फौरन समझ में आ जाएगा। We'll look into it in more detail when we start the actual subject. So categories में वो आ जाएगा, recent trends क्या चल रहा है। मेन जो पार्ट है ये तो ओवरव्यू हो गया। उसके बाद ये जो सिस्क, रिस्क, आर्म, डीएसपी एंड एसओसी, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिस्क इज अ कंप्यूटर सिस्टम व्हिच इज, लास्ट टाइम भी शायद हमने पढ़ा होगा सिस्क एंड रिस्क के बारे में, कुछ याद है आप सबको? complex instruction and RISC is reduced instruction set of computers. CISC is complex instruction system of computers. तो ये 2 सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स है जो कि हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड एनी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। देन देयर इज अ ARM प्रोसेसर, ओके, व्हिच इज एडवांस्ड RISC मशीन। ARM प्रोसेसर एडवांस वाला प्रोसेसर है ये। अगर आपने सुना होगा A12 बायोनिक चिप के बारे में सुना है? हैज एनीबॉडी हर्ड ऑफ A12 बायोनिक चिप? Yes. कहां पे Apple यूज processor.
Apple, iOS. iPhone. It is usually from Apple processor. iPhones. Okay, Apple processor. So ये जो प्रोसेसर है which is based on ARM processor. Okay, so अगर ARM प्रोसेसर इतना एडवांस है कि जो डेली लाइफ में जो आप एप्पल लैपटॉप में या एप्पल आईपैड में या आईफोन में आप यूज करोगे वही ARM प्रोसेसर, वही एक फैमिली से ARM प्रोसेसर आता है. ओके, सो इट इज अ वेरी मॉडर्न प्रोसेसर. ओके, सो ARM प्रोसेसर का थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा. ये 8086 जो कि 1970-80 में बना था वो प्रोसेसर उतना पुराना प्रोसेसर नहीं है. ARM इज अ वेरी वेरी न्यू प्रोसेसर. ओके, इट केम इनटू पिक्चर लाइक इन 2004 या 5 में आया था, और जो करंटली जो वर्जन चल रहा है बायोनिक चिप which was developed in 2019. So it is a very new processor. Okay, then there is a system called as DSP. DSP stand for digital signal processing. Then there is a system called as SoC. SoC का full form किसी को पता है? Can anybody guess for SoC? SoC? Does anybody know what is SoC? I think everybody knows what is SoC, but पता नहीं aware है कि नहीं. हर एक मोबाइल फोन में there is a SoC. SoC stand for system on chip. Okay, जो आपके मोबाइल फोन के अंदर when we talk about Qualcomm, Snapdragon 865, 855 ये जो बात करते हैं हम Qualcomm की बात करते हैं. So these are called as SoCs. Okay, ये एक SoC होता है. SoC एक खास तौर का कंप्यूटर होता है जो कि एक ही चिप पे पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको बना के मिलता है. उसी चिप पे आपको प्रोसेसर भी मिलेगा, उसी चिप पे रैम भी मिलेगा, उसी चिप पे रोम भी मिलेगा, उसी चिप पे आपको DSP भी मिलेगा. DSP एक सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देता है. ओके, तो अगर आप जैसे PUBG खेलते हो या अगर आप Asphalt 8 खेलते हो तो Asphalt 8 में आपका गायरोस्कोप सेंसर यूज होगा, बराबर ना? Yes. बराबर. गायरोस्कोप सेंसर में आपको पता चलेगा कि आप कितना टिल्ट कर पा रहे हो, तो वो रियल टाइम में वो फटाफट कैलकुलेशन करता है. ये कैलकुलेशन कौन करता है? आपका DSP कैलकुलेट करता है. ओके, सो DSP कैलकुलेट्स कि आपका एक्चुअल पोजीशन क्या है, गायरोस्कोप का वाइब्रेशन कितना देना है, क्या देना है, अगर ठोकर हुआ तो वाइब्रेशन देना है कि नहीं देना है. तो ये सारा जो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट होता है. तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कैलकुलेट करता है वो अगर प्रोसेसर को दे दोगे तो प्रोसेसर उसी काम में बिजी हो जाएगा, वो बाकी काम नहीं कर पाएगा. तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड चिप बनाते हैं जिसका नाम है DSP, और ये काम वो करके देता है. उसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं जैसे कि मॉडर्न हो जाता है विच इज मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग. तो आपका इंटरनेट का जो भी काम होता है वो मॉडर्न दिखता है. ये सब SoC के ऊपर प्लांट होकर के एक सिस्टम ऑन चिप बन करके आप मोबाइल के अंदर उसको यूज करते हो. ओके, क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes. Yes. So first module is related it is complete theory. सवाल एम्बेडेड सिस्टम पे पूछा जाएगा, सिस्क और रिस्क में डिफरेंस पूछा जाएगा, या शॉर्ट नोट पूछा जाएगा ऑन DSP, SoC या ARM पे. इसके अलावा और कुछ नहीं सवाल पूछा जाएगा आपको. ओके, सो दैट इज ओनली 10 मार्क्स. This subject is only this module is only for 10 marks, and the hours that has been allocated is 5 hours, but I don't feel like ये 5 घंटा लेगा. It would take max 2 hours in order to finish it up because we have already covered. थोड़ा बहुत हमने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा था तो उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिस्क और सिस्क को थोड़ा हमने कवर कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए. ओके, then we'll go to the second module. The second module is called as the microcontroller architecture and programming of 8051. Okay, so this is the main crux of MEP सब्जेक्ट. सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई सब्जेक्ट लेगा, पूरा सब्जेक्ट में से कोई मॉड्यूल लेगा तो वो यही वाला मॉड्यूल लेगा, और सबसे खतरनाक वाला मॉड्यूल यही है. ये और सेकंड एंड थर्ड सबसे ज्यादा मतलब इसको समझने के लिए स्टार्टिंग में आपको मजा तो आएगा क्योंकि सिमिलर है 8056 की तरह. इंट्रोडक्शन टू 8051, उसका आर्किटेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, पिन समझ में आ जाएगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाएगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट समझ में आ जाएगा. लेकिन दिक्कत आएगी यहाँ से. ओके, काउंटर एंड टाइमर्स, सीरियल कम्युनिकेशन. ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट आप 2 घंटे में भी समझ सकते हो अगर समझ आपकी अच्छी है. 4 घंटा भी लग सकता है, 5 घंटा भी लग सकता है, 20 घंटे भी लग सकते हैं, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा. ओके, सो दिस सब्जेक्ट बिकॉज लास्ट टाइम आई वाज टीचिंग दिस सब्जेक्ट, इट टुक अराउंड 14 to 15 hours in order to teach only this point actually. Okay, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हर जगह यूज होएगा, हर एक प्रोग्रामिंग में यूज होगा, और ये हर बार रिपीट होगा. ओके, सो काउंटर्स एंड टाइमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. दो इसके ऊपर देखा जाए तो
प्रोग्राम जो है आपका 3 प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम में अगर काउंटर्स एंड टाइमर्स अगर आपको आ गया समझ में, तो गारंटीड आप 20 मार्क्स 20% उस प्रोग्राम का आप लिख लोगे। 20% अगर आपने लिख लिया तो हर एक प्रोग्राम के अंदर अगर आपको बाकी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइमर्स एंड काउंटर्स अगर आपने सेट कर दिया तो भी आपको बाय डिफॉल्ट 2 से 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे बूंद बूंद से ही आप एक एक मार्क से ही आप पास होते हो। तो टाइमर्स एंड काउंटर्स दो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट में जबरदस्ती इसको हम ज्यादा खींच रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना ये सब्जेक्ट अधूरा होगा और बाकी कुछ आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपको टाइमर से काउंटर समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपको सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कोई भी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे, कोई भी डेटा को सेंड नहीं कर पाओगे, और वो प्रोग्रामिंग में ये दोनों चीज बहुत मस्ट है। ओके, फिर आ जाता है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स भी थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है इस केस में। 8086 की तरह नहीं है कि फटाफट वो खत्म हो जाता है। हाँ, इंस्ट्रक्शन सेट सिमिलर है 8086 की तरह, एड्रेसिंग मोड सिमिलर है। ओके, बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, विच इज इनपुट आउटपुट पैरेलल सीरियल पोर्ट्स, टाइमर काउंटर्स एंड आईएसआर, ये प्रोग्रामिंग में मैक्स वक्त जाएगा। ओके, सो टाइमर काउंटर समझना, उसके बाद उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना, फिर पैरेलल और सीरियल पोर्ट को समझना और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना। इसके ऊपर कम से कम जहां तक मैं अज्यूम करता हूं, क्योंकि अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो शायद 10 से 12 घंटा इस टॉपिक को कवर करने में चले जाए। उसके अलावा आर्किटेक्चर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये सब करते करते हमको कम से कम इस पूरे मॉड्यूल को मैं अज्यूम करता हूँ कि 16 आवर्स तो जाएगा इस मॉड्यूल को कवर करने के लिए। सो बाय द एंड ऑफ मे बी अगस्त लेट्स से ये हम मॉड्यूल को खत्म कर पाए। ओके, सो पूरा टाइम इसी में जाने वाला है हमारा। ओके, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Okay, and the weightage of this module will be roughly around 30 to 40 marks. So please make a note of it. 30 to 40 marks सिर्फ और सिर्फ इसी मॉड्यूल के ऊपर आपको आएगा। So उसमें से 2 प्रोग्राम और 2 थियरी हो सकता है, या 3 प्रोग्राम 1 थियरी हो सकता है, 2 प्रोग्राम 1 थियरी हो सकता है। So जो भी कॉम्बिनेशन में आए, कम से कम 2 प्रोग्राम तो गारंटीड है, जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 2 प्रोग्राम आएगा ही आएगा गारंटीड इस मॉड्यूल से। ओके, सो 2 थियरी भी आ सकता है। थियरी पूछा जा सकता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे, थियरी पूछा जा सकता है इंटरप्ट पे, थियरी पूछा जा सकता है आर्किटेक्चर ऑफ 8051 पे, थियरी पूछा जा सकता है आपको इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर, एड्रेसिंग मोड के ऊपर। अगेन एड्रेसिंग मोड इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ 8086। सो वही, अगर आपको याद होगा एड्रेसिंग मोड इज नथिंग बट इज अ वे ऑफ पासिंग एन ऑपरेंड इनटू एन इंस्ट्रक्शन। तो वही है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, वही चीज वापस रिपीट होगी, लेकिन थोड़ा इंस्ट्रक्शन सेट का लुक थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा सिंटैक्स बदल जाएगा। ओके, बिकॉज इट इज अगेन अ सेम फैमिली ऑफ 8086। 8051 इज द सेम फैमिली ऑफ 8086, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ओके, सो दैट इज ऑल रिलेटेड सेकंड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल इज अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग मॉड्यूल। ये पूरा प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है, इसके अंदर एक भी पार्ट थियरी नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज प्रोग्राम, एवरीथिंग इज प्रोग्राम। सो आपको क्या करना है, देयर आर 6 डिवाइसेस, 6 पार्ट है इसके अंदर। एक है ADC, ADC stand for analog to digital converter. Then we have DAC, which is digital to analog converter. Then we have got a stepper motor. Third, then we have got a LCD screen. Fourth, then we have got a KBD matrix keyboard. Then we have got 8255 PPI. ये 6 components को आपको 8051 के साथ इंटरफेस करना है। इंटरफेस करना है मतलब जोड़ना है। ओके, तो जोड़ने के लिए जो प्रोग्रामिंग लगेगी वो प्रोग्रामिंग आपको सीखना है। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है 6 घंटा, बट लेट मी टेल यू कि हर एक टॉपिक को, हर एक प्रोग्राम को समझने के लिए कम से कम आपको 2 घंटा तो जाएगा। ओके, हर एक प्रोग्राम को, हर एक इंटरफेसिंग को समझने के लिए कम से कम 2 घंटा आपको लगेगा। सो रफली इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी 12 घंटे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 घंटा, पता नहीं किस हिसाब से ये लोग सिलेबस बनाते हैं। नो टीचर कैन टीच यू दिस सब्जेक्ट इन 6 आवर्स, दैट आई कैन गारंटी। क्योंकि केबीडी मैट्रिक्स जो कीबोर्ड अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये केबीडी मैट्रिक्स कीबोर्ड का जो प्रोग्राम है, जो लास्ट टाइम भी पूछा गया था प्रोग्राम 10 मार्क के लिए, वो प्रोग्राम ही कम से कम 3 से 4 पेज का प्रोग्राम होता है। ओके, सो वो समझाने के लिए डिफिकल्टी आती है, लेकिन हाँ एक बार समझ में आ जाता है तो वो प्रोग्राम फिर आपको नींद से भी उठाया जाए तो आप वो प्रोग्राम लिख लोगे। इट इज अ रिपीटेशन। लेकिन हाँ 3 से 4 पेज का प्रोग्राम होता है और 10 मार्क के लिए इनमें से कोई भी एक इंटरफेसिंग के लिए गारंटीड 10 मार्क का एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा, जो कि गारंटीड आपको 10 मार्क देगा।
ओके लेकिन अगर आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना लेंथी पार्ट आपको पढ़ना नहीं होगा। लेकिन प्रोग्रामिंग मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा आपको कोई भी प्रोग्रामिंग फ्यूचर में अगर आप जावा करते हो, सी करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग, उसके लिए आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली, प्रोग्राम आप समझते हो तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है रादर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द थियरी पार्ट। ओके सो डोंट ट्राई टू स्किप इट। एक बार मैं खुद आपको जब पढ़ाना चालू करूंगा ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट उसके अंदर आना चालू हो जाएगा। बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कैसा होगा, क्या आप समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट लेट्स अज्यूम 10 से 12 घंटे के अंदर ये सब्जेक्ट, ये मॉड्यूल को हम खत्म कर सके। किसी को कोई डाउट है थर्ड मॉड्यूल के अंदर, कोई कुछ पूछना चाहता है? Does anybody has any doubt? Are you able to hear me as well? कुछ Yes. सुन पा रहे हो ना आप? So वेटेज इज एग्जैक्टली 10 मार्क्स। एक ही सवाल आएगा 10 मार्क का। आइदर वो केबीडी पे पूछा जाए या एडीसी पे पूछा जाए या डीएसी पे पूछा जाए या 8255 पे पूछा जाए। अगर वर्स्ट केस हो गया या बहुत ऐसा हो गया तो 2 भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर देखे हैं उसमें हमेशा एक ही सवाल पूछा गया। कोई भी एक इंटरफेसिंग के ऊपर एक गारंटीड सवाल आया है और 10 मार्क का श्योर आया है, हर पेपर में आया है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आता है, गारंटीड एक आएगा ही आएगा श्योर। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया कि अगर आपने स्किप कर दिया ये मॉड्यूल को और ये उसी क्वेश्चन के अंदर आ गया जिसमें से एक पार्ट आपको अच्छे से आता है, जैसे एड्रेसिंग मोड आ गया और साथ में इंटरफेसिंग आ गया, तो आपको फिर अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, तो 10 मार्क आपका लूज हो ही जाएगा। तो बेटर ये है कि आप प्रोग्रामिंग सीख लो, उसके अंदर टाइम लगेगा थोड़ा समझने के लिए, लेकिन हाँ एक बार समझ में आ गया तो आप, मैं गारंटी देता हूँ फिर ये आप 10 मार्क लूज नहीं कर पाओगे। ओके सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में गए, जैसे कि अनिकेत करके है, नितेश करके है, इन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दे बेसिकली हैव स्कोर्ड इन दिस सब्जेक्ट, दे हैव स्कोर्ड अराउंड 75-76 मार्क्स आल्सो। सो कुछ स्टूडेंट है जो स्कोर करते हैं इस सब्जेक्ट में। ओके सो ऐसा नहीं कि आप स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन स्कोर तभी कर पाओगे जब आपका प्रोग्रामिंग बेटर होगा। ओके सो ये वाला मॉड्यूल को आप स्किप तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर जैसे कि अगर आपका मकसद है 32 मार्क्स लाना, तो उस केस में ठीक है, चलो कंसिडर कर सकते हैं। देन विल गो टू द फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल इज अ न्यू प्रोसेसर that we'll be discussing about, new microcontroller which is called as ARM7. Okay, ARM7 क्या है? एक माइक्रोकंट्रोलर है which is a RISC based microcontroller. Okay, whereas 8051 जो है वो CISC based माइक्रोकंट्रोलर है, दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली। सो ARM7 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक माइक्रोकंट्रोलर है, तो उसका वर्किंग अगेन वही चीज वापस रिपीट होगी, उसका आर्किटेक्चर रिपीट होगा, तो आर्किटेक्चर डायग्राम वापस रिपीट होगा। रिपीट मतलब उसका अलग होगा, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम है, बट आर्किटेक्चर फिर से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्म का पढ़ना पड़ेगा, आपको एड्रेसिंग मोड वापस वही पढ़ने पड़ेंगे। एड्रेसिंग मोड भी सिमिलर है थोड़ा बहुत 8051 की तरह, 8086 की तरह। फिर उसका कुछ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, बट वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू 8051। फिर पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पाइपलाइनिंग अगर आपको याद है 8086 में कितने पाइपलाइन थे? 3 स्टेज How many pipelines were there? 3 स्टेज 2 स्टेज पाइपलाइनिंग। सो पहले स्टेज में फेच करते थे, दूसरे वाले में एग्जीक्यूट करते थे, राइट? ओके राइट, यस। ओके सो इन केस ऑफ ARM7 इट इज अ 3 स्टेज पाइपलाइनिंग। इसके अंदर फेच करोगे, अगले स्टेज में डिकोड करोगे, उसके अगले स्टेज में एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन जो ARM7 से पाइपलाइनिंग मिलेगा ना आपको, वो ट्रू पाइपलाइनिंग मिलेगा। ओके, ट्रू पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है? वो एग्जैक्टली एक ही स्टेज में फेच करेगा, एक ही क्लॉक साइकिल में डिकोड करेगा और एक ही क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट करेगा। Whereas in the case of 8086 वो एक क्लॉक साइकिल में नहीं करता था, क्योंकि वहां पे जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज था, अगर आपको याद होगा 8086 में इंस्ट्रक्शन का साइज जो था वो वेरी करता था। द मैक्सिमम साइज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन वाज 6 बाइट, तो वो 1 बाइट से लेके 6 बाइट के बीच में आपका इंस्ट्रक्शन साइज होता था। Whereas in the case of ARM7 इंस्ट्रक्शन का जो साइज है ना वो फिक्स है, तो फिक्स है तो फेच भी फिक्स टाइम में होगा, डिकोड भी फिक्स टाइम में होगा और एग्जीक्यूट भी फिक्स टाइम में होगा। तो जो पाइपलाइनिंग मिलेगा वो ट्रू पाइपलाइनिंग मिलेगा विदाउट एनी बबल्स। ओके सो पाइपलाइनिंग का कुछ कंसेप्ट हमें देखना पड़ेगा, जो कि अगर सीओए में जो रिपीट था वो वापस रिपीट होएगा। फिर इसका एक्सेप्शन और इंटरप्ट देखना पड़ेगा। तो ये जो मॉड्यूल है दिस विल गिव यू 30 मार्क्स गारंटीड। ओके एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मॉड्यूल टू अंडरस्टैंड और लिमिटेड
टॉपिक्स है और गारंटीड 20 to 30 मार्क्स का सवाल, 30 मार्क्स का सवाल इसमें बनता ही बनता है। ओके, सो अगर स्कोर करना है, मतलब अगर पास होना है, तो पास होने की आखिरी जो सहारा है वो आर्म 7 है। आर्म 7 को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन टू अंडरस्टैंड। इट विल टेक सम टाइम, या एग्जैक्टली यहाँ पे 10 घंटा है तो 10 घंटा वो लगेगा, लेकिन वो 10 घंटे में आपको 30 मार्क्स गारंटीड आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ये आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। हर पेपर में लगभग 30 मार्क्स का वेटेज से ये आर्म 7 पूछा ही जाता है। ओके, सो प्लीज पुट अ वेटेज ऑफ 30 मार्क्स फॉर आर्म 7। कुछ पूछना है किसी को इस मॉड्यूल के रिलेटेड? Does anybody have any query related to fourth module? No, sir. Okay, so अगर अभी तक अगर आप आवर्स देखोगे तो 2 घंटा प्री रिक्विजिट में गया, 2 घंटा जो मेरे assumption के हिसाब से 2 घंटा इसमें जाएगा, 4 घंटा ये हो गया। This would take around 16 hours, so 20 hours इसमें हो गया। This would take around 12 hours, तो कितना 20 plus 12 is 32. This would take 10 hours, so it would take 42. So as per my assumption, पूरे के पूरे सेमेस्टर में अगर मैं जी जान भी लगा दूं तो ये 4 मॉड्यूल ही कवर होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट इज वेरी 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 वास्ट। ओके, सीओए से डबल वास्ट है ये सब्जेक्ट। सो अगर मैं पूरी जान भी लगा दूं, बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेंबर, अगर आपको याद होगा शायद मैं जावा जब आपको ले रहा था, आई वाज हैविंग डेंगी ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट? सो आई वाज टीचिंग दिस सब्जेक्ट एंड आई हैव टेकन 5 hours consecutive। I've taught ARM 7 for 5 hours का एक पूरा कंटिन्यूअस लेक्चर लिया, फिर 5 hours का एक पूरा कंटिन्यूअस लेक्चर लिया, तब जाके मेरा ARM 7 खत्म हो पाया। So this subject is very vast. This subject is very vast. फिर बच जाएगा जो RTOS है और फिर बच जाएगा जो एम्बेडेड टारगेट है। ये जो दोनों मॉड्यूल है, अगर आपको याद होगा COA में वहां पे मेमोरी था और वहां पे एक IO था। तो वो जैसे COA में था कंप्लीट थियरी था, आपको नोट्स दे दिया जाएगा, टाइम मिलेगा तो बेशक मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर टाइम के शॉर्टेज होने के चांसेस जो मुझे लगते हैं कि होंगे, तो उस केस में ये वाला मॉड्यूल आपको कोशिश करना है कि आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 लाइंस के कुछ डेफिनेशंस होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि आरटॉस के, आरटॉस स्टैंड फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो ओएस हम यूज करते हैं वो आरटॉस उसको बोला जाता है। तो उसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स होता है, एक को हार्ड रियल टाइम आरटॉस बोला जाता है, एक को सॉफ्ट रियल टाइम आरटॉस बोला जाता है। ओके, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। फिर पोसिक्स स्टैंडर्ड्स क्या है, फिर डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉर्मल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। सो हार्डली इट विल अगेन टेक 2 or 3 hours in order to cover up this whole मॉड्यूल। एंड फिर बचा वो जो 6th मॉड्यूल है, 6th मॉड्यूल के अंदर ये सब जो है कंप्लीट, मतलब नेट पे अगर अभी आप जाओगे तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। तो आर्डिनो क्या होता है, रास्पबेरी पाई क्या होता है, ARM कॉर्टेक्स क्या होता है, जो हम एप्पल की चिप की बात कर रहे हैं, इंटेल गैलीलियो क्या होता है, ये सब आप नेट पे भी डालोगे, विकिपीडिया से जाकर के आप कंटेंट लेकर के आप उसको अभी भी पढ़ सकते हो। उसका शॉर्ट नोट बना करके आप उसको रट्टा मार रहे हो उसका कि किसका कितने गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, किसका जो बिट साइज है वो कितना है, किसका प्रोसेसर कितने बिट का है, कौन सा प्रोसेसर कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, तो वो सब इसके अंदर है। बाकी इसके अंदर मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा वक्त जाया करके आपको कुछ हासिल होगा। ये जो है 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 10 to 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और ये 10 मार्क का पूछा जाएगा। तो 20-30 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स का ये दोनों लास्ट का मॉड्यूल आपका वेटेज होगा। सो 30 मार्क्स फॉर दिस, 30 मार्क्स फॉर ARM 7 which is 60 marks, interfacing is for 10 marks, so 70 marks, 70 plus this is for 40 marks, 70 plus 40 is how much, 110 I guess, yeah 110, and this is for 10 marks, so 120। so जो total marks का weightage है वो 120 है। attempt आपको उसमें से out of 80 आपको attempt करना होगा। is it clear? Yes, sir. should I repeat again the marks weightage? clear है? Yes, sir. ओके, सो पहला जो मॉड्यूल है वो आएगा 10 मार्क का, सेकेंड जो मॉड्यूल है वो आएगा रफली 40 मार्क्स का, थर्ड मॉड्यूल आएगा 10 मार्क्स का, फोर्थ मॉड्यूल, am I going too fast? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Fourth No, module no. will be coming for
30 marks. Fifth module will come for 20 marks. And sixth module will come for 10 marks. Okay, sixth module guaranteed लास्ट के जो शॉर्ट नोट होता है उसके अंदर सिक्स्थ मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन रहेगा. फिफ्थ मॉड्यूल में से एक 110 क्वेश्चन. व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. गारंटीड 10 मार्क का क्वेश्चन है. आइदर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से ए या बी में से कोई भी एक ऑप्शन में गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा. गारंटीड 110%. कोई भी पेपर में आप चेक करो, ये पेपर में एक आर्टॉस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा. सो ये 20 मार्क तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको कि यहाँ से आपको एक थियरी मिल जाएगा आर्टॉस से, और एक आपको अर्डिनो पढ़ो या इंटेल आर्म कॉर्टेक्स पढ़ो या गैलीलियो में से कोई एक, या रास्पबेरी पाई में से कोई एक प्रोसेसर के बारे में आपको गारंटीड 10 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा. तो 20 मार्क तो यही हो गया आपका. आर्म 7 के ऊपर से मैं एक 5 क्वेश्चन का लिस्ट दे दूंगा. उस 5 क्वेश्चन में से गारंटीड आपका 3 क्वेश्चन गारंटीड गिरेगा. सो 30 मार्क्स आप यहाँ पे, अगर ये 3 मॉड्यूल अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आप आराम से 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. अब वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि वो इंपॉर्टेंट में है या कहाँ पे आ रहा है, वो डिपेंड करता है. तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि 3 मॉड्यूल से आप आराम से 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो वर्स्ट केस सिनेरियो में. अब बचे हुए मॉड्यूल में से आपको 2 मार्क्स निकालना है. सो वो आप आराम से मेरे हिसाब से निकाल सकते हो. तो पास करने के लिए मैं इतना तो आपको कैपेबल कर दूंगा कि आप पास हो जाओगे सब्जेक्ट. अगर मकसद है, जो कि सबका मकसद होना चाहिए, स्कोर करने के लिए, तो आपको बाकी सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. इसे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो बुक जो है आपको बुक मेरे ख्याल से एक तो मजीदी है जो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा मजीदी. ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं, लेकिन वो 8051 ही उसमें मिलेगा. आर्म 7 आपको नहीं मिलेगा. आर्म 7 का बेसिकली कोई बुक नहीं है. मुझे कुछ रेफरेंस बुक मिले हैं, लेकिन वो 2000 पेज 2500 पेजेस के हैं और एक मॉड्यूल पढ़ना है. तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्री नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए थे, कुछ स्लाइड्स हैं, और कुछ बच्चों के नोट्स हैं जो मैं उनसे मांग लूंगा और वो शेयर कर दूंगा. तो वो आपको वहां से मिल जाएगा. बाकी कंटेंट में आपको डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर होगा, जो भी स्लाइड बनता रहेगा, मैं वो शेयर करते रहूंगा. तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हो. और जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर बेटर है साथ में आप नोट करते चले जाओ तो ज्यादा बेटर होगा. और अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे बीच में टोक करके आप रोको. आप कुछ भी बोलना है कहीं पे भी बोलो. आपको यहाँ पे वैसे भी एम्बैरेसमेंट फील होने का जरूरत नहीं है. एक तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे. ओके, और कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं. सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. कुछ भी रहेगा, कभी भी कुछ भी पूछना है, आप बिंदास कहीं भी कैसे भी पूछ सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है इस सब्जेक्ट के बारे में, कुछ डिफिकल्टी आ रही है कुछ समझने में आज का इसमें? पहले ये बताओ, ऑनलाइन जम रहा है आप लोग को? ऑनलाइन क्लास जम रहा है कि दिक्कत आ रही है? हाँ, थोड़ा 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 जम रहा है. थोड़ा. बाकी नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ये सब कुछ फेस हो रहा है आपको? नहीं चल जा रहा है काम? नहीं चल रहा है, वाईफाई एकदम. ओके. सो आई थिंक मीट थोड़ा बेहतर है. उस हिसाब से नेट कनेक्शन थोड़ा चल जाता है कंपेयर टू अपना जूम से. जूम में ज्यादा इंटरनेट पैक यूज होता है, मीट में उतना यूज नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने अब तक तो देखा है. हाँ सर. बाकी मेरे ख्याल से आसानी जूम में ज्यादा है या जियो मीट में ज्यादा आसानी है कंपेयर टू इसमें. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी दूसरे डोमेन से आ जाता है. अभी लास्ट टाइम आई गेस somebody has entered with name of Osama something Dawood or like that. तो वो ये सब चीज में यहाँ पे तुम नहीं मिलेगा. और ऊपर से यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कि कॉलेज के डोमेन पे चले जाता है, तो आपको आसानी से शेयर भी हो जाती है चीजें. तो ये सब चीजें थोड़ी है आसान. बाकी हाँ, बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप प्लीज बताओ, तो हम वो चीज अपने बाकी डिपार्टमेंट में शेयर करना है तो हम वो शेयर कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग? No sir. Okay, so should we start with the first module? Start करें क्या? Yes. Okay, so we'll start with the first module. क्योंकि अभी मतलब चालू है, 20 मिनट बचा है, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है, तो unnecessary फिर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है. तो start with the first module. The first module, the title of the first module is
is Introduction to Embedded System. Okay, I have got a slide which I've taken from the previous year. Student have basically mailed me. I will just share that slide. Okay, so are you able to look at this? Yes. Yes, sir. Okay, so पहला जो है that is the first module is called as Introduction to Embedded System. तो ये स्लाइड में ये पीडीएफ में आपको शेयर कर देता हूँ, साथ में आप मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो भी आप सुनते चले जाओ, रिकॉर्ड करते चले जाओ. तो सिस्टम क्या होता है, पहले तो हमें सिस्टम क्या होता है वो पहले समझना पड़ेगा. ओके, सो आर यू गाइस रिकॉर्डिंग इट डाउन? So recording in the sense? Are you guys noting it down? Are you guys Yes. writing it down? Yes. Yes, yes, we are So writing we'll start with the first point. The first point is you need to understand what is a system. सिस्टम समझ में आएगा, फिर एम्बेडेड सिस्टम समझ में आएगा, फिर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग समझ में आएगा, फिर वो माइक्रो कंट्रोलर यूज करके हम एम्बेडेड सिस्टम कैसे बना पाएंगे, तब हमें जाकर के ये सब चीजें समझ में आ पाएगी. तो पहले हमें सिस्टम समझना पड़ेगा. तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कुछ नहीं, सिस्टम एक अरेंजमेंट होता है. बेसिकली एक कंपोनेंट होता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एक साथ काम करके आपका कोई फंक्शनैलिटी आपको अटेन हासिल करके देती है. कोई भी फंक्शनैलिटी जो आपको चाहिए वो आपको करके देती है. दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम. ओके, सो दैट सिस्टम कैन बी एनीथिंग. वो वॉशिंग मशीन को भी आप एक सिस्टम बोल दो, या आप फ्रिज को बोल दो, आपके कंप्यूटर के सिस्टम को आप सिस्टम बोल दो. सो एवरीथिंग जो आपको कुछ भी एक फंक्शनैलिटी जो आपको चाहिए वो अगर आपको अचीव करके दे सकती है विद द हेल्प ऑफ द कंपोनेंट दैट इट हैज, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सिस्टम. ओके, तो अगर मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो कंप्यूटर सिस्टम तभी होगा जब उसके पास मॉनिटर होगा, उसके पास एक सीपीयू होगा, उसके पास कीबोर्ड होगा, उसके पास माउस होगा, तभी मैं अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी को मैं अचीव कर पाऊंगा. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गूगल मीट मुझे यूज करना है, तो अगर मेरे पास मॉनिटर नहीं है तो मैं कैसे यूज कर पाऊंगा, मुझे दिखेगा कैसे? अगर मेरे पास प्रोसेसर ही नहीं है तो प्रोसेस हो करके आएगा कैसे मेरे पास वो डेटा? अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं है तो मैं चैट वैट अगर मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? अगर मेरे पास माउस नहीं है तो मैं उस स्क्रीन पे होवर कैसे कर पाऊंगा? बराबर ना? तो ये सब चीजें का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, इट विल बी कॉल्ड एज अ सिस्टम. सिमिलरली अगर आप माइक्रोवेव ओवन की बात कर लो, माइक्रोवेव ओवन में वो इंडक्शन जब तक नहीं रहेगा, वो ओवन जब तक नहीं रहेगा, वो लिड जब तक नहीं होगी, जब तक कि वो उसके अंदर जो टाइमर्स जो आप सेट करते हो वो सब नहीं होगा, तब तक आप एक पूरे के पूरे सिस्टम को आप बिल्ड नहीं कर पाते. सिमिलरली योर मोबाइल इज ऑल्सो सिस्टम. मोबाइल के अंदर अगर आपका टच स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा है बराबर, या अगर कोई भी कंपोनेंट अगर फेल होता है तो पूरे सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है. सो अगर आप इस पॉइंट में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ अ कंपोनेंट बेसिकली फेल्स. अगर कोई भी एक कंपोनेंट फेल होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है. सो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लेट्स से अगर आपकी स्क्रीन अचानक से बंद हो जाती है तो आप नहीं देख पाओगे उस चीज को. तो वो आपका सिस्टम जो आपको अचीव करना था, फंक्शनैलिटी वाज टू अचीव, फंक्शनैलिटी जो आप अचीव करना चाहते थे वाज कि आप वो स्क्रीन, आप उस लेक्चर को सुन पाओ, उस लेक्चर को देख पाओ. लेकिन अगर स्क्रीन ही नहीं चल पा रही हो तो फिर आप कैसे कर पाओगे? सिमिलरली अगर आपका 3.5 mm का जैक अगर अचानक से वर्क करना बंद हो जाए तो आप जो लेक्चर जो बोला जा रहा है वो आप नहीं सुन पाओगे, या आप जो बोलना चाहोगे वो आप बोल नहीं पाओगे. सो ये सब को हम सिस्टम बोला जाता है. और सिस्टम के अंदर अगर कोई भी कंपोनेंट अगर फेल होता है तो वो पूरी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है. सो इज दिस सिस्टम क्लियर टू यू? सिस्टम समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ विल गो टू द अनदर टाइप ऑफ सिस्टम जिसको एम्बेडेड सिस्टम बोला जाता है. ओके, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक टास्क करके आपको देगा. कोई भी एक टास्क अगर कोई करेगा देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एम्बेडेड सिस्टम. सो कैन यू से अ कंप्यूटर इज अ एम्बेडेड सिस्टम? Can a computer called be can a computer be called as an embedded system? No. Can a mobile it can be called as embedded system? Mobile? No. No, it cannot be called an embedded system. But what about your microwave oven? Can it be called as a embedded system? Yes, because उसका काम एक ही है, खाना बनाना. बराबर ना? हाँ, उसके अंदर आप 10 किस्म के खाना बना सकते हो. आप केक बेक कर सकते हो, आप रोटी बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप उसके अंदर मल्टीपल टास्क कर सकते हो, लेकिन उसका स्पेसिफिक फंक्शन है विच इज टू कुक फूड. ओके, सिमिलरली वॉशिंग मशीन के अंदर आप सिर्फ कपड़े धो सकते हो, आप अपने आप को अंदर डाल के धो नहीं सकते हो, राइट? कुछ लोग करते होंगे, वो अलग बात है. बट बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क करके देगा आपको. सो एम्बेडेड सिस्टम का अगर आप डेफिनेशन यहाँ पे जो
मैंने डिक्टेट करवाया था उसने पे, अब मेरा डिक्टेशन, अभी मैं 2 लोगों का पीडीएफ मेरे पास है, सब में अलग अलग डेफिनेशन आती है, एज यू नो कि जो भी मैं डिक्टेट करता हूँ वो अलग ही हो जाता है। सो यहाँ पे जो लिखा है, एम्बेडेड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो एम्बेडेड सिस्टम जो है, सो दिस इज नॉट ओनली ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम के अंदर ये 2 कॉम्बिनेशन होता ही है, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और हार्डवेयर होना चाहिए। बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आप सिस्टम नहीं बना सकते। ओके, सो एम्बेडेड सिस्टम भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो इसका डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क करेगा। ओके, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक टास्क। इज इट क्लियर? Yes, इज sir. इट क्लियर? और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है, वो फीचर है कि जो भी टास्क आपको दिया जाए वो एक टाइम के अंदर उसको खत्म करना है। आप उसको जिंदगी भर नहीं ले सकते उसको खत्म करने के लिए, बराबर ना? तो अगर आपको ओवन में अगर केक बेक करना है तो वो आधे घंटे के अंदर ही उसको बेक करना है, ऐसा नहीं कि वो 10 घंटा ले ले, 10 घंटे में तो जल जाएगा वो खाना। अगर आपको अगर आपको बेसिकली अगर एलिवेटर यूज करना है, एलिवेटर के अंदर अगर आप 4th वाले फ्लोर पे अगर आप क्लिक करते हो तो 4th फ्लोर पे ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर चलते चले जाएगा। ओके, और अगर अगर आपको वॉशिंग मशीन में अगर आपको 17 राउंड में अगर आपको रिंस करना है या 17 बार आपको वॉशिंग मशीन को घुमाना है तो 17 बार ही घूमना चाहिए, ना कि 25 टाइम, 29 टाइम्स, 35 टाइम्स। तो ये जो टाइम दिया गया है वो टाइम उसको पकड़ के उसके टाइम के अंदर ही उसको खत्म करना है अपने टास्क को। अगर वो नहीं कर पाता है देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एम्बेडेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर के अंदर अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो वो आपका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हो सकता है वो नेट का स्लो हो गया तो उससे कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा। अगर आप एक मूवी देख रहे हो 2 घंटे की मूवी, अगर आपको थोड़ा बफर होते होते अटकते अटकते, या नेटफ्लिक्स पे अगर आपका नेट स्पीड उतना अच्छा नहीं, बफर होना चालू हो रहा है, तो फिर आप क्या बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एम्बेडेड सिस्टम की बात की जाए तो वो स्पेसिफिक टाइम पे ही होना चाहिए, वो उतने टाइम में अगर उससे थोड़ा डिले हुआ तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। ओके, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड सिस्टम, सिर्फ माइक्रोवेव ओवन की बात नहीं करो या वॉशिंग मशीन की नहीं बात करो, आप छोटे डिवाइस की भी बात कर सकते हो। अगर आपका रिमोट की बात हो रही है तो टीवी का रिमोट है वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम ही है, उसका भी एक डेडिकेटेड टास्क ही है। अगर आप पावर ऑन करोगे तो पावर ऑन ही होगा, अगर आप उससे वॉल्यूम ऑन या ऑफ कम या कम ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम ऑन ऑफ भी होगा। लेकिन अगर मान लो आप वॉल्यूम की बटन दबा रहे हो और उसका कोई टाइम नहीं है, वो 10 मिनट के बाद वॉल्यूम तेज हो रहा है उसका, तो आपको समझ में नहीं आएगा यार मैंने दबाया था, वो आगे उसी वक्त मुझे उसने फंक्शन करके दिया कि नहीं करके दिया। तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली दबाना चालू करोगे और फिर 10 मिनट के बाद अचानक से वो वॉल्यूम 100 पे पहुंच जाएगी। तो एम्बेडेड सिस्टम का ये एक फंक्शनैलिटी है कि जो भी टास्क आपको दिया जाए वो एक स्पेसिफिक टाइम में ही होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes. ओके, किसी को कोई डाउट है एम्बेडेड सिस्टम में, किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई? No. Okay, now tell me, just tell me, is a mouse a embedded system or it is a regular system? A complete system. Mouse. Embedded system. Mouse is a embedded system or a complete system? Embedded system. Embedded It has a system. specific task. What about keyboard? Embedded system? Yes. Yes. Keyboard is also embedded system. Yes. What about a television? Embedded system. No, it is a complete system. I'm talking about the smart TV. Okay, you can perform multiple tasks into it. Okay, But a screen mobile is an phone. embedded system, right? Yeah, previous one was the embedded system. It used to perform a specific task. But आज के time पे you can play Netflix into it. You can open a calculator into it. You can do multiple tasks into it. Okay, आप shopping भी कर सकते हो. Okay, into it. So you can perform multiple tasks into it. But now the television which is now, because it has a processor into it. उसके अंदर अगर आप जाओगे, अगर आप एक टीवी, स्मार्ट टीवी को अगर आप अगर उसके अंदर स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे, there is a processor into it, there is a RAM into it. दो उसके अंदर प्रोसेसर की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि वो फंक्शनैलिटी उतनी ज्यादा नहीं कर सकते, बट यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क इनटू इट। आप कॉलिंग फैसिलिटी भी कुछ कुछ टेलीविजन के अंदर मिलती है। ओके, बेसिकली करंटली my phone has been broken down, so currently I'm using BlueStack. So मैं BlueStack से भी मैं WhatsApp यूज कर पा रहा हूँ, मैं WhatsApp से कॉल कर पा रहा हूँ।
सो ये चीज मैं टेलीविजन पे भी कर सकता हूँ. सो यू कैन नॉट पुट अ टेलीविजन, द करंट टेलीविजन इनटू एम्बेडेड सिस्टम. या द प्रीवियस वन वाज इन द एम्बेडेड सिस्टम. उसके अलावा वॉशिंग मशीन इज अ एम्बेडेड सिस्टम. Okay. Yes. What about the elevator? Embedded. Embedded system. It is again an embedded system. Okay. Yes. Then okay. So a complete system or a system can be made up of multiple embedded system also. Okay. So अगर आप एक कंप्यूटर की बात कर पाओ तो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल एम्बेडेड सिस्टम इसके अंदर होते हैं, जिसको कंबाइन करके आप एक कंप्लीट सिस्टम को बना सकते हो, या एक एम्बेडेड सिस्टम स्टैंड अलोन भी काम कर सकता है. Now tell me, what about sensors? When you're talking about sensors, is it embedded system or is it a complete system? Embedded. It is embedded system. No idea. Sensors is an embedded system. It performs a specific task. अगर टेम्परेचर सेंसर है तो टेम्परेचर ही सेंस करेगा, वो कोई और काम करके नहीं देगा आपको, बराबर ना? Yes. Okay. या सो दैट इज व्हाई अगर कोई भी डिवाइस एक ही काम करेगा, इट इज कॉल्ड एज अ एम्बेडेड सिस्टम, और एक टाइम के अंदर करके देगा, इट इज एम्बेडेड सिस्टम. एज सिंपल एज दैट. दो ही क्राइटेरिया आपको सिस्टम को जज करने का. वो स्पेसिफिक काम कर रहा है तो वो एम्बेडेड सिस्टम है, अगर मल्टीपल काम कर रहा है तो वो नॉर्मल सिस्टम है. या दूसरा तरीका ये है कि अगर वो एक टाइम में कर पा रहा है देन इट इज अ एम्बेडेड सिस्टम, या अगर वो टाइम इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है देन इट इज जस्ट कंप्लीट सिस्टम. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. Now the next thing that you need to understand is the difference between the general purpose computer, या कोई भी complete system बोल लो या general purpose computer बोल लो, और embedded system के बीच में, इनके बीच में difference क्या है. So please make a note of it. तो सबसे पहला अगर आप difference देखोगे तो वो क्या है difference. एक तो पहला एक specific task करेगा आपका embedded system, whereas in the case of computers it will perform Multiple task. Multiple. tasks. So that is the first difference. Second difference is time is a constraint. In which case, in the embedded system or in the computers? Time constraint किसके लिए? Time important किसके लिए? Embedded system के लिए time ज़्यादा important. So the second difference is in embedded system the time is a major constraint, whereas in the case of general purpose computer, time is not at all a constraint. Okay, it can take any amount of time. Okay. The third difference, as you might have guessed it, microprocessor किस में होगा आपके हिसाब से? Embedded system में या computers में? कंप्यूटर में. आपको आपके घर के जो रिमोट है, उस रिमोट के जो टेलीविजन का जो रिमोट है, आपको क्या लगता है उस टेलीविजन के रिमोट में i7 प्रोसेसर लगाने की जरूरत है? नहीं. No. अगर i7 लगा दोगे वो रिमोट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30,000. i7 कितने का आता है आजकल मार्केट में? iPhone. Ryzen 5 खरीदोगे तो Ryzen 5 3600X मेरे ख्याल से 18-20,000 का आ रहा है इस वक्त. So अगर 20,000 का अगर आप सिर्फ अगर रिमोट खरीदोगे तो फायदा क्या? आप लगा सकते हो, ये नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन मकसद क्या है? एक ही काम करना है, एक ही काम सस्ते से सस्ते उसमें कॉस्ट होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप 8051 लगा करके या आर्म का कोई प्रोसेसर लगा करके, आर्म की फैमिली का कोई प्रोसेसर लगा करके आप एक स्पेसिफिक काम कराओगे. ओके, या आर्डिनो या नोड MCU लगा करके आप ये काम करा सकते हो. ओके, सो वो फिर अब उस डिवाइस की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जनरली एम्बेडेड सिस्टम की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है. ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो. ओके, फाइन. सो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो एम्बेडेड सिस्टम में नहीं होता है, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर होता है. whereas in the case of computers we have microprocessors. So the heart of a computer will be microprocessor, whereas the heart of a embedded system will be microcontrollers. Clear है? Yes, sir. Okay. So now tell me OS. When we talk about OS, यहाँ पे पॉइंट लिखा तो नहीं है, बट OS जो embedded system के अंदर होगा, it is called as a real time operating system. Whereas in the case of general computers, it is called as a general operating system. Okay, GOS. And in case of embedded system, it is called as RTOS. Okay. So जो general operating system है, ये complicated होगा because it has to deal with multiple functionalities. Okay, ज़्यादा functionality है. आपको file system भी देखना है, आपको network constraint भी देखना है, आपको
बाकी एम्बेडेड सिस्टम को कंट्रोल भी करना है। अगर आप मोबाइल की बात कर लो तो आपको गायरोस्कोप सेंसर को देखना है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को देखना है, आपको टेम्परेचर सेंसर्स को देखना है। देयर आर मल्टीपल सेंसर्स, आपके टच स्क्रीन के सेंसर्स को आपको मॉनिटर करना है। तो हर एक एम्बेडेड सिस्टम को वो मॉनिटर भी कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका ओएस है उसका ओएस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बराबर ना। वेयर इन द केस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम उसका एक ही काम है, वो एक ही काम है। तो आप जो ओएस होगा वो बहुत एक तो कम जगह लेगा, बहुत लाइट होगा और बहुत फास्ट भी होगा और सिंपल भी होगा। So that point is written down over here. The OS is simpler. Okay, the OS is simpler. The OS is faster. In which system? Embedded OS is simpler and faster in which system? Embedded system. Whereas in the case of general purpose computer, the OS would be Slow. complicated. It would be slower. Okay, क्योंकि वहाँ पे टाइम कंस्टेंट ही नहीं है। टाइम कंस्टेंट हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसके लिए व्हाट अबाउट कॉस्ट? विच सिस्टम विल बी मोर कॉस्टलियर? ज्यादा कॉस्टलियर कौन सा होगा? जनरल पर्पस विल बी मोर कॉस्टली। जनरल पर्पस ज्यादा कॉस्टलियर होगा क्योंकि उसको मल्टीपल फंक्शनैलिटी करना है। एम्बेडेड सिस्टम अगर आप कॉस्ट बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। अगर आपको 7,000 का एक रिमोट खरीदना है जो कि कॉल भी कर सकता है, जो कि आपको मैसेज भी करने की फंक्शनैलिटी है, और 100 रुपए का मोबाइल है। अगर आप Xiaomi का अगर आप मोबाइल लेते हो तो उसके अंदर IR ब्लास्टर होता है, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट, राइट? You know what is IR blaster, right? So 15,000 का अगर आप Note 9 Pro खरीदोगे और वो फिर रिमोट की तरह सिर्फ यूज करना है तो फायदा क्या? उससे बेटर तो 100 रुपए का आप रिमोट खरीद लो, राइट? So that is why जो embedded system है that is generally cheaper and it is smaller in size, whereas in the case of general purpose computer it is generally costlier, it is bigger in size. Okay, difference clear है? Is the difference clear? Yes. Okay. Yes. Next is we are talking about memory. Memory आपके हिसाब से किसके अंदर ज्यादा होगी? मेमोरी ज्यादा किसमें होगी? ऑब्वियस है, जनरल कंप्यूटर में ज्यादा काम है, ज्यादा फंक्शनैलिटी है तो ज्यादा मेमोरी लगेगी। whereas in the case of इसमें कम मेमोरी लगेगी। आपको क्या लगता है मोबाइल एक रिमोट कंट्रोल के अंदर कितनी मेमोरी होगी? वो ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर कर सकता है? वो टाइमर को स्टोर कर सकता है। टाइमर क्या, जैसे कि अगर मान लो अगर मैं एसी का रिमोट है, एसी का रिमोट में टाइमर सेट करता हूँ कि मुझे 20 मिनट्स में एसी को ऑफ करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस टाइमर को ही रिकॉर्ड कर सकता है। या माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर आप जाओगे तो उसके अंदर मेमोरी में क्या फीड करेगा? इट विल फीड की वो फंक्शनैलिटी क्या आप रख रहे हो, कि वो आप कन्वेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, माइक्रोवेव के लिए यूज कर रहे हो, या किसके लिए यूज कर रहे हो। फिर वो टाइमर जो आप उसके अंदर सेट करते हो सिर्फ उतना ही डेटा आपको स्टोर करना है, वो आपका डेली एक्टिविटी स्टोर नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आज आपने गूगल एक्सेस किया या यूट्यूब एक्सेस किया या आपकी हिस्ट्री क्या थी या आपको किसने कॉल किया। ये सब चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या क्या मूवी आप देखना चाहते हो फ्यूचर में, ये सब डेटा उसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। तो डेटा उसके स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वही डेटा वो स्टोर करेगा। तो सिंस एक ही टास्क करना है तो वो उसके लिए जो रैम या रोम है वो लिमिटेड रहेगा। whereas in the case of computers, whereas in the case of general computers, ये जो मेमोरी है वो ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा टास्क करना है। तो ज्यादा टास्क करना है तो ज्यादा एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, ज्यादा एप्लीकेशन होगा तो उस एप्लीकेशन जो उस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना होगा वो डेटा ज्यादा होगा। तो उस डेटा को अगर आपको स्टोर करना है तो मेमोरी आपको बड़ी रखनी पड़ेगी। So huge memory is generally there in general computers, whereas in the case of embedded system, these memories are very less. The size of the memory is very less. Okay, so that is the second last difference. उसके अलावा एक और जो डिफरेंस है, वी हैव गॉट ओनली 1 minute left, so I will just closing it down. The last difference is the power saving mode. Okay, आपके हिसाब से पावर सेव किस में होना चाहिए, एम्बेडेड सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम में? कंप्यूटर सिस्टम में पावर सेव करना इज मैंडेटरी, जरूरत लगती है आपको। अगर आपका मान लो आपका जो रिमोट है वो आपने वॉल्यूम से उसको रिमोट का जो टीवी का वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, उसके बाद भी क्या आपको आपके रिमोट को कंटिन्यूअसली यूज करते रहना है? क्या आपको उसके माइक्रो कंट्रोलर को कंटिन्यूअसली पावर अप करते रहना है आपको? क्या आप दोबारा यूज करने वाले हो? नहीं ना, थोड़ी टाइम के बाद यूज करोगे। तो उस टाइम तक आप आइडल है आपका सिस्टम, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा? प्रोसेसर को ऑफ करना पड़ेगा, कंट्रोलर को ऑफ करना पड़ेगा। कंट्रोलर ऑफ करोगे तो आपका जो AA बैटरी है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, बिकॉज वो एक मूवेबल डिवाइस है। एम्बेडेड सिस्टम एक मूवेबल डिवाइस
डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है। मोबाइल डिवाइस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट क्या है, आपका पावर का कंस्ट्रेंट है। तो पावर का कंस्ट्रेंट आपके लिए, आपके हिसाब से कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एम्बेडेड सिस्टम में होना चाहिए या कंप्यूटर में? कंप्यूटर के पास तो डेडिकेटेड एसी पावर सप्लाई है, उसको क्यों पावर सेव करना है? बराबर ना? बराबर? Yes, yes. Yes. Whereas in the case of अगर नॉर्मल, अगर एम्बेडेड सिस्टम की बात की जाए, उसका एक ही टास्क है, वो एक टास्क आपने कर दिया, उसके बाद आपको यूज ही नहीं करना है। जब दोबारा काम आएगा तभी आपको यूज करना। उस टाइम तक अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को ऑफ नहीं करते हो, उसको पावर मोड में नहीं डालते हो, तो कंटिन्यूअसली आपकी बैटरी को खाता रहेगा, या तो उसको प्लग में लगा के रखना पड़ेगा, तो जो कि आपके डिवाइस के लिए अच्छा नहीं होगा। सो जनरली पावर सेविंग जो मोड है वो कहाँ पे होगा? एम्बेडेड सिस्टम में होगा। Whereas in the case of computers there is no power saving mode. Okay? जनरली देयर इज नो पावर सेविंग मोड। अगर आपको कंप्यूटर को ऑफ करना है, आप पावर सेविंग में जनरली आजकल एक ऑप्शन आता है कि आप उसको करते हो, लेकिन फिर भी बैक एंड में वो चलता रहता है, वो टाइम को मेंटेन करता रहता है। वी कैन नॉट से दैट कंप्लीटली योर प्रोसेसर हैज गॉन इनटू पावर सेविंग मोड। ओके, अगर आप प्ले स्टेशन यूज करते हो, देयर इज अ मोड कॉल्ड एज रेस्ट मोड। ओके, रेस्ट मोड में आप क्या करते हो? अगर प्ले स्टेशन को रेस्ट मोड में डाल देते हो, अगर आपको पीएसएन से कोई गेम डाउनलोड करना है तो बैक एंड में वो डाउनलोड होता रहता है। ओके, बट प्रोसेसर वो फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसका अभी भी कनेक्टेड है और वो डाउनलोड कर रहा है। अगर आपको याद होगा, आजकल तो लोग टॉरेंट यूज नहीं करते, बट अगर टॉरेंट से पहले अगर आपने यूज किया होगा, टॉरेंट को आप बैकएंड में डाउनलोड करने के लिए रख सकते हो। ओके, तो उसके लिए प्रोसेसर के अंदर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट आपका चलता रहता है, आपका स्टोरेज वाला पार्ट चलता रहता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वाला जो पार्ट है वो कुछ देर के लिए रुका हुआ रहता है। सो सम पार्ट इज idle. So कंप्यूटर में जो होता है, we do not get a complete power saving mode, whereas in the case of embedded system, when we are talking about power saving mode in embedded system, we get a complete power saving mode. वो generally दो मोड में आता है। One is a idle mode, which is a complete shutdown mode, और दूसरा है वो working mode, which is when it is currently working. So power saving mode is generally associated with embedded system. Is the point clear to you? Yes. Yes, sir. Yes. Is the point clear? Yes, sir. Okay, so it is almost time, so it is 12:02 right now. So I'll be sharing this. Do you want me to share this file? या आप नोट डाउन करते रहोगे? नहीं सर, शेयर करो। शेयर करूं? शेयर करो। तुम लोग का फिर नोट डाउन करोगे नहीं यार तुम लोग? नहीं सर, नोट डाउन कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। दिस बेसिकली कवर्स द फर्स्ट मॉड्यूल। उसके बाद वाला पार्ट फिर आई विल स्टार्ट टीचिंग विद पीपीटीज ओनली। ओके, आई फाइंड दिस की क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग उतना है नहीं, तो इसके लिए मैं सोचा था कि ये पीडीएफ दिखा के आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। और डू यू हैव द सिलेबस कॉपी एज वेल, और यू वांट टू शेयर द पीडीएफ कॉपी एज वेल? द सिलेबस कॉपी ऑफ द पीडीएफ We have it. शेयर कर दो सर। यू हैव इट राइट? ओके, तो मैं आपको ये पीडीएफ आपका जो सिलेबस कॉपी है वो उसका, और जो आज का लेक्चर का जो भी आज हमने पढ़ा है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? Does anybody has any doubt? No, sir. Okay, do not leave the class right now because I have to take a screenshot. पता नहीं एक्चुअली वहां पे चालू है कि नहीं, तो इसलिए अटेंडेंस लग पा रहा है कि नहीं, इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट लेते जा रहा हूँ ताकि मैं बाद में आपके एक्सेल शीट में डाल सकूं। ओके, इसके बाद आपका लेक्चर नहीं है ना आज के दिन, ये वीक में तो आपका मेरे ख्याल से लेक्चर नहीं है। Yes. अगले वीक से आपका फिर बाकी सीएनएस मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से ही आपका चालू होगा। सर अभी एग्जिट हो जाओगे? हाँ, एग्जिट हो जाओ, अभी एग्जिट हो जाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना, चलो। कौन बोल रहा है वैसे? ये ऋत्विक।
हाँ बोलो रहते हो। सर एप्पल डिवाइसेस में आर्म प्रोसेसर यूज होता है, राइट? जी जी जी। हाँ, तो वो एम्बेडेड सिस्टम्स में आता है। नहीं, एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम में आर्म सिर्फ और सिर्फ आर्म 7 नहीं यूज होता है। अभी आर्म जो है ना, वो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम में नहीं आता है। आर्म से आप मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आगे, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, आर्म 7 भले ही वो माइक्रो कंट्रोलर्स में भले ही आता है, लेकिन जो एडवांस वर्जन का जो आर्म मशीन आ रहा है, जब जो A12 बायोनिक चिप की बात कर रहे हैं, वो और एडवांस हो चुका है। ये जो आर्म 7 की बात करें, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। सो ये जो भी आर्म 7 आ रहा है, वो एक अलग कैटेगरी में जा चुका है। इट हैज गॉन इनटू अ न्यू सिस्टम। वो ना एम्बेडेड सिस्टम में आता है, ना माइक्रो कंट्रोलर में आता है, ना माइक्रो प्रोसेसर में आता है। वो आता है एक एसओसी के अंदर। इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑन चिप। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू प्रोसेसर, द न्यू फैमिली ऑफ प्रोसेसर, इट ऑल कम इनटू एसओसी। सो दैट इज व्हाई एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया था स्टार्टिंग में एसओसी के बारे में। एसओसी मतलब क्या है? एक चिप है जिसके अंदर आपको उसी चिप पे प्रोसेसर भी मिल जाएगा, उसी चिप पे आपको रैम रोम सब कुछ मिल जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्नैपड्रैगन में उसी चिप पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ओके, सो आपको अलग से डेडिकेटेड कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जीपीयू भी उसी पे मिल जाएगा। ओके, सो A12, इसलिए यही प्रॉब्लम है कि आप एप्पल पे ज्यादा बेटर गेमिंग नहीं कर सकते। अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट एप्पल के बारे में, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि इट हैज ड्रॉप डाउन इंटेल फ्रॉम इट्स वो फर्दर जो भी डिवाइस जो मैकबुक या एप्पल एयर में, वो इंटेल को उसने ड्रॉप डाउन कर दिया है और इट हैज गॉन इनटू राइजन नाउ। बेसिकली राइजन going to use their own processor in their laptops, right? सर राइजन नहीं यूज करने वाले? नहीं, मैंने तो सुना राइजन यूज करने वाले हैं। मैंने सुना कि कस्टम उन लोग खुद बनाने वाले। ओके, तो पता नहीं। अभी जो मेरे पास जो अपडेट आई थी वो राइजन आई थी, क्योंकि जो ये जो इंटेल यूज कर रहे थे, इंटेल में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो डेडिकेटेड वो ग्राफिक कार्ड नहीं दे पा रहे थे। जो इंटेल का ग्राफिक था वही उनको मिल पा रहा था देने के लिए। सो शायद वो अब राइजन यूज करने वाले हैं जिससे उनको डेडिकेटेड ग्राफिक मिल पाए और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। अभी पता नहीं, अभी इसमें बहुत सारा स्पेकुलेशन है। कुछ लोग राइजन बोल रहे हैं, अभी जैसे नील बोल रहा है कि कुछ और है, सर पता नहीं क्या है। सर अलग यूज करने वाले, खुद का यूज करने वाले। और कुछ आर्म प्रोसेसर का जो स्पीड पे कुछ इफेक्ट होता है क्या एप्पल और या विंडोज डिवाइस में ऐसा? हाँ, आर्म जो प्रोसेसर है वो ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है कंपेयर टू बाकी। अगर क्वालकॉम देख लो, स्नैपड्रैगन की बात कर लो, अगर मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आर्म प्रोसेसर ज्यादा बेटर प्रोसेसर है कंपेयर टू दूसरे प्रोसेसर। क्योंकि जो आर्म प्रोसेसर है ना, वो एक रिजिड प्रोसेसर है। उसके अंदर एक डेडिकेटेड टास्क दिया गया है कि हाँ, जो तुम्हारा जो साइज है वो 32 बिट का ही होगा हर एक इंस्ट्रक्शन का। वैसे अगर आप स्नैपड्रैगन में देखोगे तो साइज जो है वो डिपेंड करता है। कोई इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो 2 बाइट का हो सकता है, 3 बाइट का हो सकता है, 4 बाइट का हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो पाइपलाइनिंग में जो आपको एडवांटेज लेने को जो मिलता है, जो कोर्स आप यूज करते हो, वो कोर्स में जो एडवांटेज मिलता है, वो पूरा एडवांटेज जो है, वो पूरा निचोड़ जो है पाइपलाइनिंग का, वो आर्म में ज्यादा मिलता है। आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू बाकी दूसरे प्रोसेसर, इंटेल के प्रोसेसर में। क्योंकि इंटेल ने अभी तक अपना स्नैपड्रैगन पे आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर डाल लो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वो सब बेनिफिट आपको मिलता है। एप्पल में यही प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा बेनिफिट, रिजिडनेस आपको मिलता है। आपको ये लगता है यार ये यही काम कर सकते हैं हम। दूसरी चीज एक्स्ट्रा, अगर आपको कोई इंटरफेस अगर करना है कोई दूसरे डिवाइस के साथ, वो आसानी से नहीं हो पाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ स्नैपड्रैगन, डेवलपर ऑप्शन में चले जाओ, अगर आपको कुछ चेंज करना है वहां से भी आप चेंज करके कोई भी दूसरे डिवाइस को आप इंटरफेस कर सकते हो। लेकिन एप्पल में ये रिजिडनेस नहीं है। तो इसकी वजह से अगर डिवाइस रिजिड होगा तो ऑटोमेटिकली फास्टर हो जाएगा। और आर्म में दूसरा एडवांटेज ये है कि उसके अंदर ना जो रजिस्टर है ना, वो ज्यादा है। उसके अंदर जो मेमोरी के साथ जो लेना देना है वो कम है। तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट जो कैश मेमोरी आती है आर्म के अंदर, वो ज्यादा आती है कंपेयर टू दूसरे जो स्नैपड्रैगन में। तो इसलिए आर्म महंगा हो जाता है। इसलिए एप्पल का मोबाइल क्यों महंगा होता है? क्योंकि आर्म प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट महंगा है, क्योंकि वो फास्ट आपको करके दे रहा है। ओके, तो कैश मेमोरी क्योंकि वो महंगी हो जाती है, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसर का कीमत बढ़ जाती है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। तो हाँ, डेफिनेटली आर्म प्रोसेसर फास्टर होता है कंपेयर टू अदर प्रोसेसर्स। और कुछ? हाँ, शुभम ने सवाल पूछा था मैं ब्लू स्टैक क्यों यूज कर रहा। ब्लू स्टैक इसलिए यूज कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल टूट गया यार, OnePlus। अभी नया मोबाइल लेना है, कौन सा लेना है वो मैं सोच रहा हूँ। सर OnePlus ले लो, अच्छा है। अभी OnePlus